In previous lecture, we have covered the following topic: define relative atomic mass, molecular mass, formula mass, and how to calculate the formula mass, and for calculating percentage of different elements in a compound. Now we will discuss the mole and Avogadro's number with example, and we will determine number of moles and number of particles with the relationship of the Avogadro's number. So these two topics will be covered in this lecture. What is mole? Initially, mole was described as the gram atomic mass or the gram molecular mass or the gram formula mass of a substance. Actually, what is meant by the gram atomic mass? In previous lecture, we have learned that if you represent the atomic mass or molecular mass instead of mu in gram, then it is called gram atomic mass or gram molecular mass. So what is the difference between these two units? We will cover this as well in this lecture. A more better definition of the mole is the gram atomic mass, gram molecular mass, or the gram formula mass of a substance. It is similar as it was written on the top. But here, the addition is that it contains 6.023 into 10 to the power 23 particles. And what are these particles? These particles could be atoms, molecules, or formula units. So this is the whole definition and the comprehensive definition of mole, that mole is the gram atomic mass, molecular mass, or the gram formula mass of a substance that contains 6.023 into 10 to the power 23 particles. And these particles are atoms, molecules, or units. So what is this number? This number is actually Avogadro's number. So Avogadro's number is the number of particles possessed by 1 mole of a substance. This number looks small, but if you consider the exponential value, that is 10 to the power 23, it is plus 23. Power is not in negative, so it means it is a very huge value. See, so by scientific notation, we have written just 6.02 into 10 to the power 23. Now, see how big a mole. See, these are the different substances. 1 mole of each different substances is there. This balloon has 1 mole of oxygen gas. This wire is 1 mole of copper, and this water is 1 mole of this magic cylinder has 1 mole of water, and this is 1 mole of calcium sulfate in the chalk. And if you see their masses are also different. 1 mole of oxygen is 32 gram, 1 mole of water is 18 gram, 1 mole of copper is 63.5 gram, and 1 mole of calcium sulfate is 136 gram. The masses that we have written here are gram atomic masses or the gram molecular masses. For copper, it is the gram atomic mass, and for water, oxygen, and these are the gram molecular mass, and for calcium sulfate, these are the gram formula mass. Because these are represented in gram, and when they are represented in gram, it means they are equal to 1 mole. So 1 mole of different substances have different masses because these are the different. They have their different composition and their atomic masses are also different. But the important question that may arise in your mind is what is the difference between AMU and gram? So we will discuss in this lecture as in further slides. Now see here, this table shows that 1 mole of different substances have different uh, different masses, but the number of particles are same. And for some substances, we use the term atom for particles. For example, here we are using the term atom, and here we are using the term molecules, and here also we are using the term molecule, and here we are using the term units or formula unit. So why they are different? Actually, these are the elements which exist as in term of atoms. So their particles in standard form are considered atoms. So whenever you are talking about iron, that you have 1 mole of iron, then you can consider that it has 6.0 to 10 to the power 23 atoms because they exist in atomic form. Similarly for carbon. But when you talk about oxygen and hydrogen, these are the elements which exist as molecule. Means single atom does not exist in atmosphere or in any container. So these are called molecule. Then definitely their particles are molecule because they exist in the form of molecule.
while water and carbon dioxide are also molecules, they form the covalent compounds and they exist as molecule. Molecule is the entity that exists independently in atmosphere. While on the other hand, if you see from number 5 to number 8, these are the ionic compounds. And ionic compounds never form molecule. They exist as crystal lattice. So they are represented by their formula units. So NaCl is not the molecule, but it is the formula unit. CaCl2 is not the molecule, but it is formula unit. So for all of these, they are represented as units. So their particle means units. If you talk about their Avogadro's number, so we are talking about 6.0 to 10 to the 23 such particles which contain one sodium and one chloride. And these are actually the simple formula, simple ratio between these ions. Similarly for iron and oxygen. Now, see in this table, we have illustrated or further elaborate the term mole and Avogadro's number or the number of particles. You can see here sodium, just like other metals, these are represented as atoms. So if we talk about 1 mole of sodium, it means we should consider that it contains 6.0 to 10 to 23 atoms. So nature of particle is atoms here. But when we talk about a solution contain 1 mole of calcium ion, it means they contain 6.0 to 10 to 23 ions. But when we talk about the whole compound, we are talking about that one mole of sodium chloride. So 1 mole of sodium chloride means there are 6.0 to 10 to the 23 formula units, and one formula unit is NaCl. So it means it has two types of ions, sodium ions and chloride ions. So as in one formula unit, one sodium ion is present. So if there are 6.0 to 10 to the 23 formula units, so there would be the same number of sodium ions as well as the same number of chloride ions because their ratio is same in the compound. Similarly, when calcium chloride, we are talking about 1 mole of calcium chloride, it is also an ionic compound. So it contains 6.0 to 10 to the 23 formula units. And one unit contains one calcium and two chloride ions. So as one unit contains one calcium ion, so the number of calcium ions would remain same, but chloride are double, so they are double in number. It is just like that. If you are talking about a normal person, then that normal person has one head and two legs and two hands. So when we talk about that, if you are 10 people, then if you are 10 people, then there would be 10 heads. But how many hands would be there? There would be 20 hands. So similarly, if 1 mole of calcium chloride contains 6.0 into 10 raised to the 23 calcium chloride units, so it must contain the same number of calcium ions. So we are talking about their ions, but when the compound is molecular in nature, for example, water. One more thing, see here, this is hydrogen, and hydrogen means you consider that hydrogen gas. So 1 mole of hydrogen means there are 6.0 into 10 raised to the 23 molecules of hydrogen. And each molecule of hydrogen has two hydrogen atoms. So how many atoms are there? There would be double number of hydrogen atoms. And now come to water. What about water? See, the formula of water has two hydrogen atoms and one oxygen atom. So by combining these atoms together, they form a molecule. So it's okay that one water molecule contains two hydrogen and one oxygen atom. So how many molecules would be there? There would be the same Avogadro's number, that 1 mole is equal to 6.0 into 10 to the 23 molecules of water. No problem. But when we talk about the atom, so as one molecule contain only one oxygen, so as many molecules are there, that there would be the same number of oxygen atoms. But hydrogen atoms would be doubled. So this is somehow the similar case as we have discussed here in calcium chloride. यहाँ पे भी रेशियो 1:2 था और यहाँ पे भी रेशियो 2:1 है। तो जितने ऑक्सीजन उसके मुकाबले में हाइड्रोजन डबल है, यहाँ पे जितने कैल्शियम उसके मुकाबले में क्लोराइड क्लोराइड डबल है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं।
We know that gram atomic mass of iron is 56 gram, or its atomic mass. This is the gram atomic mass. If we talk about the relative atomic mass, yeah, simply atomic mass, relative atomic mass of iron, then it is the same magnitude, but unit is AMU. And you must remember that AMU, 1 AMU is not equal to 1 gram. Anyway, now see, similarly, the gram formula mass of potassium dichromate is 294 gram. But the relative formula mass of K2Cr2O7 is same, 294. Magnitude is same, but unit is AMU. Again, you must remember that 1 AMU is not equal to 1 gram. Now, what do you think? Is it the mass of one iron atom, or is it the mass of one formula unit? What do you think? Think about it. Think about it. Okay. So the answer is no. For both of them, answer is no. Why? Actually, this is the true relationship of 1 AMU and value in gram, that is 1.6 into 10 raised to power minus 24 gram. So 1 MU is not equal to 1 gram, but it is very, very small quantity in gram. See, it is 10 raised to power minus 24. See, as we have described that 1 MU is equal to 1.64 into 10 raised to power minus 24 gram. Now, you know, one atom of carbon is 12 MU. We know the relative atomic masses in our periodic table, and these are provided in our exam. Mass of one atom of carbon, if you want to calculate mass of one atom of carbon by simple calculations, I'm not using any formula here, although we will use the formula later on. But right now, see, so 12 multiply, if it is the mass of 1 MU and it has 12 MU, then definitely if you multiply this MU value with this one, then we can get the mass of one atom of carbon. So this is one of the way to calculate the mass of one atom of any substance if you know the relative atomic mass. And definitely we know the relative atomic mass from the periodic table. Nobody can remember all the atomic masses. So mass of 1 mole of atom, 1 mole means 6.02 into 10 to the 23. As much particles are there. So we multiply this mass of one atom with the Avogadro's number, then see, it is almost 12. So this is a very big difference. Actually, when we talk about mass in gram, for example, if I'm talking about uh, 1 mole carbon, it means it is 12 gram. If you are talking about 1 atom of carbon, then it means it is 12 AMU, because this is the mass of 1 mole. 1 mole is equal to 12 gram, okay? That we have seen in our tables that I have shown previously. Now, the question that may arise in your mind is that why it is not the whole number, because here we didn't use the complete value of the Avogadro number. It not stop here on 3, but there is something after 3. Similarly, when we have written this 1.64, it is not the exact value. If you use the exact values of Avogadro's number and this 1 MU in gram, then you can find the same number, that is 12. Now, again, this is 1 MU is equal to 1.61 to 10 raised to 24. But one atom of oxygen is 16 MU. We know it from the periodic table. And again, if you want to calculate the mass of 1 mole of
one atom of oxygen, then just multiply this value with its 16 mu, that is the relative atomic mass, then you will get the mass of one atom of oxygen, and mass of one atom of oxygen is 2.624 into 10 to the power minus 23 gram. That is very, very small. The mass of one mole atoms of carbon, not carbon, actually it is for oxygen. So the mass of one mole of oxygen atom is 15.8 gram. Again, if we are talking about 16 AMU oxygen atoms, oxygen, so it is one atom. But when we are talking about 16 gram oxygen atoms, it means we are talking about 1 mole, or in 1 mole means 6.02 into 10 raised to power 23. Okay, तो अब आप देख चुके हैं कि 1 AMU जो है ये 1 ग्राम के बराबर नहीं होता है, बट 1 AMU is equal to 1.64 into 10 raised to power 23 gram, 10 raised to power minus 24 gram, I'm sorry. अच्छा, अब इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं। आइए देखें जरा, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास रिलेटिव atomic mass of iron is 56 AMU. अब ये जो 66 AMU है, ये 56, सॉरी, ये जो 56 AMU है, ये बेसिकली 56 ग्राम के इक्विवेलेंट नहीं होता। अभी हमने ये बात पिछली स्लाइड में जो डिस्कस की है, ठीक है। तो बट इट इज फॉर 1 atom of iron, but when you write 56 gram, then it is for 1 mole of iron, और 1 मोल ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि देर आर 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of iron. ओके, तो अब आपके पास दो तरीका हैं अगर आपको एक एटम का मास निकालना है। मास ऑफ वन एटम कैसे निकाल सकते हैं? हमें मालूम है कि 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स का मास 56 है, तो मास ऑफ वन एटम वुड बी 56, अगर मैं एक्यूरेटली लिखूं तो इसको 3 लिखना चाहिए, डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 raised to power 23। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसका मास जो है कितना आ रहा है। हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो है 9.3 into 10 raised to power minus 23 gram. So this is the mass of one atom of carbon. So this is the mass of one atom of carbon. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि this 56 is for one atom of iron. This is for one atom of iron. And 1 AMU is equal to 1.64 into 10 raised to power minus 4. So other way to calculate the mass of one atom is to multiply 56 into 1.64 into 10 raised to power minus 24. तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। कैलकुलेट कीजिए आप लोग अपने पास। 9.2 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि वेदर we do the calculation by using Avogadro's number or by using this value, we get the same result. 9.2 and 9.3 are considered same because we have not taken the exact value of
दिस 1.64, बिकॉज इसके बाद भी यहाँ पे आगे भी कुछ मौजूद है। तो बहरहाल हम आगे कैलकुलेशन तो सिखाएंगे, लेकिन एक बात और भी सोचिए ना, कि अगर हम 56 ग्राम की बात करें तो 56 ग्राम का तो आपने ये दुकानों पे वजन रखे हुए देखा होगा। अगर आप किसी पंसारी की दुकान पे पहुंच जाएं तो वहां पर जो है आपके पास एक तकरीबन इस साइज का जो है मांस रखा हुआ होता है। ब्रास का होता है, ये पीतल का। और ये 50 ग्राम का होता है, तो 56 ग्राम तो उससे ज्यादा हो गया। तो क्या एक एटम इतना बड़ा हो सकता है? खुद ही सोचने की बात है। तो एक्चुअली ये 56 ग्राम जो है, ये एक एटम का मास है भी नहीं। ये इतने सारे एटम्स का मास है, तो एक एटम का मास तो बहुत ही कम होता है। पर ये बात अंडरस्टूड है ना, इस बात को हमें समझना चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए, यही बात जो मैंने अभी आयरन के लिए बताई थी, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जो है रेडियम। रेडियम, जिसकी सिंबल Ra है, दिस इज रेडियम। रेडियम इज एन एलिमेंट। its relative atomic mass is 226 point, let me see, it is 226.02 from the periodic table. It is 226.02। हम 226 भी ले सकते हैं इसको, 226.02, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 226। यूनिट क्या है? AMU। अच्छा, अगर हम इसके ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 226 ग्राम। अच्छा, अब ये जो मास है आपके पास 226 MU, मैं अगेन यही बात आपको बताऊंगा कि इट इज फॉर वन एटम एंड इट इज फॉर 1 मोल ऑफ एटम। एटम्स ऑफ रेडियम, 1 एटम ऑफ रेडियम। देखिए ना, 226 तकरीबन 250 जो होता है ना, वो आप हमारे पाकिस्तान में जो है, इसको हम कहते हैं एक पाव। अब आपको तो अंदाजा लगाइए, एक पाव किसी चीज़ की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। तो एक पाव का मतलब है वन, यानी कि क्वार्टर ऑफ दी 1 kg। तो ऑलमोस्ट इट इज 225, 226, 250 के करीब ही है ये। तो क्या एक एटम इतना बड़ा हो सकता है? नामुमकिनात में से है ना। तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो MU में और ग्राम में वैल्यूज होती हैं, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होती। जब ग्राम में लिखते हैं तो बेसिकली हम 1 मोल की बात कर रहे होते हैं, और जब हम MU में लिख रहे होते हैं तो फिर हम उनके सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं। वो सिंगल पार्टिकल एटम भी हो सकता है अगर एलिमेंट की बात करें, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात अब ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ गई होगी। बाकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, वो तो मैंने आपको भी, जैसे कि पिछली स्लाइड में आयरन के लिए बताया था, तो इसके लिए भी दो तरीके हैं। कि अगर आपको मास ऑफ वन एटम मालूम करना है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ रेडियम आप आराम से मालूम कर सकते हैं। कि दो तरीका है आपके पास। कि एक ये है कि आपने क्या किया, 226 को मल्टीप्लाई कर दें 1 MU की वैल्यू जो ग्राम में है, जो कि 1.64 इंटू 10⁻⁻23 20 - 24 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका मास आया 3.70 इंटू 10⁻⁻22। दूसरा तरीका इसका जो है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आयरन के लिए किया था, इसलिए यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ रेडियम। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 226 को डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻⁻23 से। यानी अवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये जो 1 मोल के ग्राम थे, 226 ग्राम, तो इनका आंसर जो है वन एटम के लिए आ जाएगा। लाजमत है, जब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 226 ग्राम है, तो एक के लिए क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे ना। अच्छा, तो देखें हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है वो तकरीबन यही है, 3.70
706, तो ऑलमोस्ट 3.71 ले सकते हैं, इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। यानी ये एक एटम का मास है। तो मेरे ख्याल में इन एग्जाम्पल से आप वाज़ेह तौर पर समझ चुके हैं कि जब हम इन्हीं एटॉमिक मासेस को ग्राम में लिखते हैं तो वो एक एटम का मास नहीं होता है, बल्कि वो 1 मोल का मास होता है। और इसीलिए हम इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, कि एटॉमिक मास को अपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब वापस आ जाइए मॉल की डेफिनेशन। मॉल की डेफिनेशन में क्या पड़ी थी? इट इज द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास दैट कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अब आपको मेरे ख्याल में ये डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि आगे ये जो मोल है ये हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मोल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। हम अपने सिलेबस के लिहाज से भी बात करेंगे, जो हमारे पास क्लास 9 में, फर्स्ट ईयर में, ओ लेवल में, ए लेवल में मोल के कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, जब हमें ये मालूम हो गया कि जनाब जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास है ये मास ऑफ 1 मोल होता है, तो हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, मोलर मास। सो व्हाट इज मोलर मास? इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance that could be an element or compound, and this is called molar mass. So molar mass can be equivalent to gram atomic mass in case of elements. Molar mass can be gram molecular mass if the substance exists in molecule, whether element or compound. And molar mass can be equivalent to gram formula mass if it is a compound, especially for ionic compound. So 12 gram is 12 gram per mole because these gram atomic mass is equal to 1 mole. So 12 gram per mole molar mass, mass of 1 mole of a substance. So 2 gram. So अब बेहतर तौर पर यह है कि हम जब ग्राम पर मोल लिखते हैं तो और बात वाज़ेह हो जाती है कि जनाब ये बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास जो हमने दिया है ये 1 मोल का मास है। तो इसलिए अब हम टर्म यूज करते हैं मोलर मास। तो अब मेरे ख्याल में और बेहतर तौर पे समझ में आ चुका होगा, और मजीद समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ, जो हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। तो पहले तो आप ये देखिए कि एक मोल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक मोल से हम देखिए 1 मोल, 1 मोल से हम अगर एवोगैड्रो नंबर मालूम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस। 1 मोल से हम मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, 1 मोल से हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये सॉल्यूशन के चैप्टर में हम इसको देखेंगे इन डिटेल। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। इसको हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन सिस्टम्स हैं उसमें इसको कहते हैं मोलैरिटी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कैम्ब्रिज में, तो कैम्ब्रिज में लफ्ज ये जो टर्म है मोलैरिटी ये यूज़ नहीं की जाती है, वो बस कह देते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको चाहें तो इस तरह से लिख दें, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दोनों तरीके सही हैं। तो यानी आप देखें एक मोल से हम ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट सिस्टम में आए, इंटरमीडिएट क्लासेस में एक और टर्म होती है मोलैलिटी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, चैप्टर सॉल्यूशन में ही इसको हम डिस्कस करेंगे। इस मोल से हम मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ ज़रूरत पड़े मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास ये टर्म यूज़ होती है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में, पाकिस्तानी बोर्ड्स में, इंडियन बोर्ड्स में। तो दीज आर डिफरेंट वेज दैट वी कैन यूज़ द मोल। लेकिन हम अपने ओ लेवल में और कैम्ब्रिज में ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बस ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। मोलैरिटी मालूम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करेंगे, और मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करेंगे। यहाँ पे मोल का रोल है। वैसे तो मोल का रोल जो है थर्मोडायनेमिक्स में भी है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी है। मोल का रोल हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट्स ऑफ रिएक्शन में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन डायरेक्टली जो मोल का रोल है वो इन तीन चीज़ों में है। अच्छा,
अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि जनाब ये मोल से हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखें, हम लोगों की आदत है फार्मूला यूज़ करने की ना, कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो हम चल नहीं रहे होते हैं। तो आ जाए उस आसान मेथड की तरफ भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स की सिंबल जो है एन होती है, तो आपने एन लिख दी। मास, व्हाट इज द गिवन मास, वॉट एवर, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देख लेंगे। और रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब हम एक टर्म और भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसको इस तरह लिखने के बजाय हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमने मोलर मास की टर्म के बजाय रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बजाय मोलर मास की टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो हम एक और आसान सा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी इसको हम पूरा मास लिख लेते हैं, और दैट इज मोल। सो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोल, यहाँ पे आ गया मास, और यहाँ पर आ गया आपके पास मोलर मास। तो ये किसी ने बहुत अच्छा जो है तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म में याद रखने के लिए। तो देखें, अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है तो फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको आप डिवीजन का साइन कंसिडर कर लीजिए। तो इट इज मास अपॉन मोलर मास, इट इज मास अपॉन मोलर मास। और अगर आपको बिल फर्ज मास नहीं कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हाँ, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सपोज करें कि मोलर मास, आपको कैलकुलेट करना है मास। तो अगर मास कैलकुलेट करना है तो क्या हो गया, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये मल्टीप्लाई। और ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें कि मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। आप वैसे भी यहाँ पे फार्मूले से भी देख लीजिए, मास मालूम करना है तो मोल यहाँ है, मोलर मास भी उधर ले जाइए, तो जब इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आप एक मरतबा काम करना शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ कि अगर बिल फर्ज आपको मोलर मास निकालना है, बात होता है मोलर मास आपको नहीं मालूम होता है, मास ही मालूम है, मोल भी मालूम है। तो अगेन फार्मूला क्या हो गया, मास अपॉन मोल। यहाँ इस फार्मूले से भी देख लें, अगर मोलर मास में कैलकुलेट करना है, मोलर मास इधर ले गए, मोल इधर आ गया, तो मास अपॉन मोल ही तो आएगा यहाँ पर भी। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगुलर फॉर्म में ये चीज़ें लिख लें तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये सब चीज़ें याद रखने के लिए अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी आप इजी महसूस करें, आसानी महसूस करें, आपको असल में सीखना है, जैसे भी सीख लें। चलें आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए इसकी जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है गोल्ड की, वो एटॉमिक फॉर्म में होती है, तो यानी कि ये एटम की बात कर रहे हैं हम। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। चलें एक काम करते हैं हम ना, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा तमाम हेलोजेंस, यानी F2, हाँ सॉरी, मैंने Fe लिख दिया गलती से, Fe तो आयरन की सिंबल है, इट इज़ F2, यानी फ्लोरीन। तमाम हेलोजेंस डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, एंड I2 हो गया। एसिटाइन भी होता है, लेकिन एसिटाइन को हम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में आता नहीं है अमूमन। तो बहरहाल, और आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब है कि आयरन के ऊपर 3 चार्ज है, और ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है। तो किसी अलग क्लास के अंदर, किसी और वीडियो में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फार्मूला ड्राइव किया जाता है। ये बेसिकली स्कूल लेवल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, और इसके चार्ज को यहाँ लिख दिया विदाउट द सिंबल। तो फार्मूला क्या बन गया इसका, इसका फार्मूला बन गया Fe2O3। सो दिस इज द फार्मूला फॉर
आयरन 3 ऑक्साइड। तो फॉर्मूला लाजमत अगर हमें नहीं आएगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बाकी सब चीज़ें मिटा देता हूँ और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो आई एम रबिंग ऑल दीज थिंग्स। उम्मीद है समझ तो गए होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि जनाब क्या है हमारे पास कैलकुलेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड, उसी ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो ऊपर मास आना चाहिए, नीचे इसका एम आर आना चाहिए। एम आर कहाँ से? ए आर मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलर मास। तो मोलर मास हमें पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ होता है, वही उसको अगर आप 1 मोल के लिए कंसिडर करें तो वो ग्राम में हो जाएगा। अब इसको 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 197 से, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.05 मोल। आप अपने पास कैलकुलेट करके देख लीजिए। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन 10 ग्राम, ये गिवन है, हमारे पास गिवन मास है, क्वेश्चन से पता चल गया। मोलर मास हमें मालूम है कि ऑक्सीजन डायटोमिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका हम पीरियोडिक टेबल में जो इसका मास है वो है 16। तो इसका जो एटॉमिक मास है उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 32 लेंगे। जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर अगेन आ गया 0.3 मोल। तीसरा आपके पास 12 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। तो अगर हम इसमें देखें तो 12 ग्राम आ गया गिवन मास, और 160 जो है ये Fe2O3 का मोलर मास है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन लेक्चर 1 में जो सिखाई जा चुकी है, अगर उसको सीखना हो तो दोबारा आप लेक्चर 1 की तरफ जाइए। इट इज़ 56 फॉर आयरन multiplied by 2 because there are 2 and 3 oxygen atoms, and each oxygen has atomic mass of 16. So finally it would be 160. तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.07 मोल। So it is easy to calculate number of moles if given mass is there, and uh, you can see the mass यानी molar masses from the periodic table. याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में मोलर मास नहीं होते हैं, वहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं, लेकिन उन्हीं को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो मोलर मास होंगे। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि मोल की जो स्पेलिंग होती है, मोल की स्पेलिंग होती है MOLE, लेकिन जब इसकी सिंबल लिखते हैं तो उसमें हम सिर्फ MOL लिखते हैं, यानी ये इसकी सिंबल है। तो यूनिट की फॉर्म में उसकी सिंबल ही लिखी जाती है, तो MOL। और अगर हम वैसे मोल लिखना चाहें तो मोल के लिए जो उसकी सिंबल होती है वो N होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड। कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एन के लिए, मोल के लिए जो है एन लिखा हुआ है। गॉट इट? चलें, अब आ जाए नेक्स्ट। तो 180 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, कॉपर, कॉपर के लिए देखिए 180 ग्राम तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैंने 64 ले लिया है। तो बेसिकली जब हम ए लेवल में और क्या नाम है इसका, इंटरमीडिएट लेवल में बात करेंगे तो हम 64 नहीं ले सकते। वहाँ पे जो मार्क्स गिवन होता है वो होता है 63.5, लेकिन 9 क्लास में और ओ लेवल में वहाँ पे उन्होंने कॉपर को राउंड ऑफ करके देते हैं। तो बहरहाल आपको तो जहाँ से जैसा जो है वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन पेपर पे मौजूद होगी, आप वो यूज़ करेंगे। तो लाजमत है, अगर ये 64 से आंसर आ रहा है 2.8125 मोल, तो अगर ये 63.5 होता तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा होती। तो इसको मैं कैलकुलेट करके देख सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। करेक्ट वैल्यू यूज़ कर लें कि 180 डिवाइडेड बाय 63.5, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.83। तो आंसर में इतना माइनर सा डिफरेंस है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा, ग्राम मोलर मास लिखना होगा, जो मोलर मास आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन है, या जैसे कि कैम्ब्रिज में पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड किया जाता है, तो जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फॉर क्लोरीन। Chlorine given mass is 21. See here in question. Next is for chlorine. Chlorine given mass is 21. See here in question. 71 is its molecular mass. The mass of one atom of chlorine is 35.5. तो इसका आंसर आ गया 0.295
mole. Mass of aluminum chloride. Aluminum chloride, there is one aluminum, so it is 27 multiplied by 1, तो 27 ही रहेगा. And but on the other hand, there is 3 chlorine atoms. So plus 3 times 35.5. Atomic mass of chlorine is 35.5. जब आप इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ गया 133.5. So 12 is here divided by 133.5, यानी 12 हमने क्वेश्चन में से ले लिया जैसे कि बाकी में भी लिया, एंड 133.5 वो यहाँ से आ गया आपके पास. तो बस ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आप इसे मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ग्राम से मोल कैलकुलेट किए जा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, उसमें आपको मास मालूम करना है. कैलकुलेट द मास. मास जो है हमें नहीं मालूम है इन सब में, तो किस किस का हमें मोल्स गिवन है. तो फिर हमें मास मालूम करना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोल और एमआर को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एमआर या तो अगर कंपाउंड है तो हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो वाटर का होता है 18, कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर लीजिए 44 आएगा, और सोडियम ब्रोमाइड का ब्रोमीन 80 एंड 23 103 आ जाएगा. ये अब हमें इनकी से मल्टीप्लाई करना है. तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यू आर टू कैलकुलेट मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वो 10 है, मल्टीप्लाई करना है इसके एम आर से 18, तो इसका मतलब 10 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 180 ग्राम. सिमिलरली इन बी you are to calculate mass of carbon dioxide. So the number of moles are 2.5 times 44 is the molar mass. अब देखिए अगर 1 मोल का मास 44 है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, उसका डबल 88, और 0.5 मोल का क्या होगा 22. तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी मर्जी है. आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, तो ये आ जाएगा 110. 110. इसी तरीके से सी में है 2.9 मोल ऑफ सोडियम, यानी मास ऑफ सोडियम सॉरी सोडियम नहीं है, सोडियम ब्रोमाइड है ये, सोडियम ब्रोमाइड NaBr. तो मोल दिए हुए हैं 2.9, मल्टीप्लाई करना है इसको 103 से, तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम. 103 मल्टीप्लाइड बाय 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 103, so it is 298.7 ग्राम. 298.7 ग्राम. तो अभी मजीद कैलकुलेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में. भाई ये क्वेश्चन है जिसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर कंपाउंड वाई के बारे में लिखा है, इट इज़ जस्ट 29%, यानी एक नेचुरल मिनरल है. इसका मतलब वो कंपाउंड जो नाम तो मेंशन नहीं किया गया वाई, ये उस मिनरल में सिर्फ 29%, यानी 298 ग्राम में से सिर्फ 290 ग्राम जो है वाई है, और प्लस अदर कंपाउंड जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किए. तो ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, लेकिन जब हमें परसेंटेज मालूम है तो हमें परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि परसेंटेज के लिए क्या होता है कि जो भी कंपाउंड वाई का मास है, यानी मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टोटल मास. और टोटल मास क्या है आपके पास, आपके पास टोटल मास है 298 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, और परसेंटेज भी आपको मालूम है. तो यानी आपके पास डेटा में मौजूद है 29 मौजूद है, मास ऑफ वाई आपको कैलकुलेट करना है, टोटल मास मौजूद है 298, और ये फॉर्मूले में 100 मौजूद है. तो अब आप इसको देखिए, इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मास कैलकुलेट करना है, तो लाजमी सी बात है कि परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास. तो देखिए परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय 100, तो फिर ये आपके पास मास आ गया कितना
86.42 ग्राम, यानी आउट ऑफ 298 ग्राम ओनली 86.42 ग्राम इज वाई। तो अब इसके मोल निकालने, तो मोल निकालना तो फिर आगे बिल्कुल वही सिंपल तरीका है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यहाँ दिया हुआ है, तो ये आ गया आपके पास 86.42 डिवाइड बाय 122.5 और आंसर आ गया आपके पास 0.71 मोल। क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर भी है कि 438 ग्राम सैंपल है जिसमें 43% कंपाउंड पी मौजूद है, यानी कंपाउंड पी की परसेंटेज सिर्फ 43 है। तो द सेम मेथड वी विल अप्लाई दैट फॉर क्वेश्चन ए, mass of P is equal to 43 multiplied by 438 is the total mass divided by 100। अच्छा, तो इसका जो हमने मास कैलकुलेट किया वो आ गया 188.34। तो ये बिल्कुल वैसे ही आया है कि देखें जैसे वही परसेंटेज का फॉर्मूला है कि परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ पी डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है, यानी कि उसको रीअरेंज करके। अच्छा, दूसरे पार्ट में दो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सिंगल फार्मूला यूनिट। तो सिंगल फार्मूला यूनिट का तो हमें मास भी मालूम है, एम आर ऑफ पी। तो अगर ये हमें मालूम है, इफ यू नो द मास ऑफ द सिंगल फार्मूला यूनिट, तो हमें इसमें से ही ऑक्सीजन को, क्योंकि परसेंटेज मालूम है, तो हम इसमें से ऑक्सीजन की ग्राम जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज दियर। आपने ले लेना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज हमें मालूम है 36.36। मोलर मास हमें मालूम है जो कि 176 है, ये रहा मोलर मास यहाँ से, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू 36.36 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 176। तो ये आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आ रहा है 63.99। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बी पार्ट में भी हमें इसी तरह से काम करना है। सॉरी, बी पार्ट का जो पार्ट टू है, तो फर्क यह है कि यहाँ पर आपको मोलर मास में से ऑक्सीजन के मास कैलकुलेट करना था, परसेंटेज दी हुई थी। तो देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो यही फॉर्मूला यूज होगा कि 36.36% ऑक्सीजन इज देयर, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है, ये ओ मीन्स ऑक्सीजन 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बस मोलर मास नहीं आएगा, यहाँ पे गिवन मास है, टोटल मास है। अब गिवन मास तो है नहीं, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड पी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दिस इज द एक्सट्रैक्टेड अमाउंट। तो टोटल मास ऑफ पी कितना है वो देखना होगा। तो देखें दिस इज 36.36 मास आपको कैलकुलेट करना है। टोटल मास आप कैलकुलेट कर चुके हैं कि 188.34 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये मास इज इक्वल टू 36.36 मल्टीप्लाइड बाय 188.34 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए अपने पास भी, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ और इसका आंसर है 68.48, 68.48 ग्राम। एंड इट इज एज पर द आंसर हियर। देखें अगर 176 में 63.99 था तो सही है। अगर ये 176 से थोड़ा सही तो ज़्यादा है इसका मास 188, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा मास आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है, हाँ, अगर इसका मास यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन में 63.99 से कम आता तो फिर ये सोचने की बात थी। तो बहरहाल, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसका बी पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया है।
अच्छा, अभी स्लाइड में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए। एक फार्मूला ये होता है कि अगर मास से, जैसे कि यहाँ पे मास गिवन है, तो मास से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, जब हम ओ लेवल में बात कर रहे होते हैं तो ओ लेवल में 23 नहीं लेते हैं, सिर्फ 6.02 लेते हैं। खैर, तो अब आप ये देखिए कि हम इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप मोल कैलकुलेट कर लीजिए। कि मोल के लिए बेसिकली मोल की तो फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास, और फिर उसके बाद आप ये दूसरा फार्मूला यूज़ कीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दिस एन कैपिटल है, सब इसके के तौर पे लिखना। ये एवोगैड्रोस नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। तो मेरे ख्याल में ये मेथड ज़्यादा आसान है कि पहले मोल कैलकुलेट कर लें, फिर मोल को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। तो 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज़ 45 डिवाइडेड बाई 18, इट इज़ वन, नहीं 1 नहीं, इट इज़ 2.5 मोल। तो अब अगर ये 2.5 मोल है तो अब इसको दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लें। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे इसका आंसर आ गया आपके पास 1.506 इंटू 10⁻24। अच्छा, होंगे क्या यहाँ पर? यहाँ पर होंगे ये एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमें नेचर ऑफ पार्टिकल को मेंशन करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस वाले पार्ट में क्या है कि मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ, क्योंकि मोल डायरेक्ट दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ 1.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो फिर यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 9.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे गलती हो गई है कि ये भी क्वेश्चन में एटम्स नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज फार्मूला यूनिट्स इन 100 ग्राम ऑफ NaCl। अगेन हमारे पास जो है यहाँ पर मास गिवन है, तो इसका MR कितना है आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा 58.5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो इट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 58.5। आंसर है वाया 1.71, तो 1.71 मोल्स। अच्छा, जब मोल कैलकुलेट हो गए हैं तो फार्मूला यूनिट भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो फार्मूला यूनिट के लिए क्या करना है, 1.71 टाइम्स 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, आप लोग भी कीजिए। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.3, एग्जैक्टली वैसे तो 1.29 है ये। तो 1.29 इंटू 10⁻24 यूनिट्स। यानी यहाँ पर टोटल जो यूनिट्स हैं NaCl के यूनिट वो है 1.29 इंटू 10⁻24। तो डेफिनेटली इतने ही सोडियम आइंस भी होंगे और इतने ही क्लोराइड आइंस भी होंगे। अगर हम नंबर ऑफ सोडियम आइंस और नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस कैलकुलेट करें तो वो भी यही होंगे। तो 12 लेक्चर 2 में अब आपने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है, और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है, इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस को लेकर चलेंगे।